Here is a booster session of calculus, and let's start with the first problem. The problem goes like this. F of x is a quadratic expression, x minus a times x minus b, for a comma b belonging to real number. We have to find the minimum number of roots of the equation pi times f dash x whole square cos of pi of f of x plus sine of pi of f of x times f double dash x equals 0, provided the domain for x is x belongs to alpha to beta, where f alpha is given as 2 and equals f beta, and alpha is less than b is less than beta. These kind of questions are not new for JEE Advanced, because clearly in this kind of question you have to first club the expression. When we have to find the minimum number of roots, so clearly an indication of Rolle's theorem. तो इसमें क्या करेंगे, अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन जिसका रूट्स आपको फाइंड करा है, ये पक्का कोई एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हुआ होगा. ठीक है, तो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एफ डबल डैश इज डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एंड साइन पाई का डेरिवेटिव क्लियरली पाई कॉस पाई एक्स इंटू एफ डैश एंड एफ डैश विल कम. So if I define a new function by this motivation, which is f dash x into sine of pi of f of x, this ka derivative is basically what is given in the expression. Now we can clearly see f dash x will have one root, right? Why f dash x will have one root? Because f of x is dying at a, is dying at b, and we know there is a number alpha at which the height of the function will be 3, and height of quadratic at beta is also 3. Clear? So from here what we can tell is there will be a point, some delta between alpha and beta, or between a and b, such that this will die. So it will give one root delta. What about sine pi f of x? Now clearly sine pi f x will die when pi of f of x will become n pi, right? So pi cancel and n is an integer. It means f of x should be integer. Now we know the maximum value of f of x that we are getting is 3 here, because at alpha and beta. So it can take a value of 3. Next integer f of x can take is a value of 2. Next integer it can take is a value 1. And next it can take 0. Of course it can take -1, right? -2, -3 and so on, because the graph can come down also. But we want minimum number of roots of the given expression. तो मिनिमम नंबर के लिए क्या होगा, अब तुम सोचो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर दोनों का दोनों रूट्स अल्फा बीटा के अंदर है, अल्फा बीटा के बीच में है, एंड अल्फा एंड ए एंड बी इज ऑल्सो रियल, इट मीन्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इज रियल. तो मैक्सिमम सिचुएशन क्या हो सकता है, वर्स्ट केस लाइक बोथ ए एंड बी विल मैच, राइट? सो वी हैव अल्फा बीटा 3 और 3. स्टिल द पॉसिबल वैल्यू इज 3, 2, 1, 0. ठीक है, मिनिमम कंडीशन क्या हो सकता है, मिनिमम तो दिस क्वाड्रेटिक कैन गो एज लो एज पॉसिबल. ठीक है, इट कैन गो -3, -2, -1, ऐसा -4, -5, -6. तो इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट तो आप जितना चाहे उतना बना सकते हो. लेकिन मिनिमम नंबर के लिए व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स कैन टेक 3 एज द आउटपुट, 2 एज आउटपुट, 1 एज आउटपुट और 0 एज आउटपुट. नाउ फॉर एवरी आउटपुट वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ एक्स. देखो, इफ एफ ऑफ एक्स टेक्स सम आउटपुट, लेट्स से 3 वाला हाइट, so we have 2 alpha and beta. Again at 2 wala height pe we have 2x, x1, x2. So this will give 2 values, this will give 2, this is going to give 2, and this is going to give 2. So we have 2, 4, 6, 8. 8 value is there. And what about f dash x? Will f dash also die at the point when sine will die? अब सोचो. नहीं, क्योंकि ये गारंटी नहीं है, क्योंकि f dash x is dying at delta. Okay, so that is another point. Clearly is a vertex, and that's another point with respect to those points, as you can see from the diagram. So the minimum number of roots will be delta plus 8 values from here, which is 9. So hence 9 is the answer for this problem. Okay, it was not very challenging, but of course on these ideas many questions can be framed. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, an is given, which is 0 to pi over 2, 1 minus cos 2n pi divided by 1 minus cos 2x dx.
you have to find 1 by sigma AR, AR plus 1, AR plus 2, AR plus 3. Okay, where R equals 1 to N, and this sigma N equals 1 to infinity. So clearly you can see the motivation. This will be some kind of telescope where first and last term difference you have to develop. Second expression is kinds of a reduction series. Okay, like either you use integration by parts, or whenever you see a and n, these kind of questions, you try to develop 1 minus cos 2 times of a structure in the numerator. Okay, or try to simplify as much as you can. तब ये तो सिंपल है क्योंकि हम ऊपर वाले को डायरेक्टली लिख सकते हैं 2n पाई x था, राइट? इट्स 2nx, सॉरी इट्स 2nx. ऊपर वाले को आई कैन राइट 2 sin स्क्वायर x by 2, that will become sin square nx. नीचे वाला is 2 sin square x by transformation, so 2 cancels. Integral is nothing but 0 to pi over 2 sin square nx by sin square x dx. अब this is not very difficult क्योंकि यहाँ से what we can do is, if you will calculate an minus an minus 1, so this guy is an, so what we are going to do it, sin square n minus 1x. This motivation are also clear because I want something and something plus 1 into picture, something plus 1. So if I want a5, then a5 should be related with a6, a7. That's a default motivation from the question itself. So sin square nx by sin square x dx. तो आपका अब यहाँ से क्या आ गया, ये क्वांटिटी को अगर हम इवैल्यूएट करें तो इट्स साइन a minus b. Okay, so a minus b if we'll give sin minus x into sin a plus b. So 2nx minus 2n minus 1 into x divided by sin square x dx. Again, minus will come out and one sign will get kicked off. So we have sin into 2n minus 1x by sin x dx. So basically an minus 1 का जो फॉर्मूला बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ठीक? अब इसको भी आई कैन फर्दर सिंप्लीफाई क्योंकि दिस इज ऑफ कोर्स इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 2 दिस क्वांटिटी, ठीक है? Now this you can simplify in any way, either sin a cos b cos a sin b, or still you can use the same recurrence analysis. So let's call this as bn. If I call this as bn, then what is bn minus 1 minus bn? So that's 0 to pi over 2 sin n minus 1 हो जाएगा 2n minus 2, so that is 2n minus 3 x minus sin 2n minus 1x divided by sin x dx. अब sin a minus sin b, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएंगे 0 to pi by 2 2 sin a minus b by 2, तो देखो यहाँ 2n कैंसिल हो जाएगा और दैट विल बिकम माइनस x इंटू कॉस a प्लस b by 2. तो a प्लस b by 2 कितना हो जाएगा, 4 का 2n माइनस 2x dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स. अब साइन एक्स गया माइनस आउट. अब कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे वो हो जाएगा साइन 2n माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2n माइनस 2 0 to pi by 2, ठीक है. अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो 0 पे तो ये साइन वाला टर्म जाएगा और पाई बाई 2 पे भी कैसे जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 पे भी विल हैव 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 2n minus 2 times pi by 2. So to cancel, it's sine of n minus 1 pi. So anyway, sine of integer multiple of pi will die. So this entire quantity will simply die. तो ये खत्म हो गया. जैसे ही खत्म हो गया so bn equals bn minus 1 we got. अब bn तो ये था अपने पास, तो यहाँ से क्या गया an minus 1 is this is bn and equals bn minus 1. So replace n with an minus 1, an minus 1 minus an minus 2. यहाँ से इंटरेस्टिंगली an प्लस an माइनस 2 इक्वल्स टू an माइनस 1. व्हाट डज इट मीन, अब इसका मतलब है ये AP में चलेगा. इट मीन्स an, ठीक है, एंड an minus 1 and a minus 2 and an they are in arithmetic progression, these three values.
आर इन ए पी। अब अगर ए पी में है तो अब तो ये बहुत ही आसान हो गया फाइंड करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए वन का वैल्यू कितना आएगा आप देख सकते हो। ए वन अगर पुट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है, ए वन का वैल्यू पाई बाई 2 आ रहा है। ओरिजिनल एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए ना, बिकॉज cos 2x कैंसिल 1 माइनस ए वन इज पाई बाई 2, ठीक है। अब ए टू का वैल्यू इज ऑल्सो पाई, आप इजिली चेक कर सकते हो। एंड वी नो नाउ दे आर इन ए पी विद कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन, तो वो कितना का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ए वन का ही, बिकॉज एस पाई बाई 2। सो फाइनली वी गॉट ए टू इज 2a1, a3 is 3a1 because of that common difference, and an is n। तो अब क्वेश्चन अपना समाप्त हो गया, बिकॉज ए आर प्लस 1, ए आर प्लस 2, ए आर प्लस 3 एंड रिटन एज आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 इंटू ए वन का पावर 4, ठीक है। अब अगर तुम इसको सिग्मा लोगे एन आर इक्वल टू 1 से n तक अगर लोगे तो ऑफकोर्स A1 4 बाहर चले जाएगा। एंड यू नो यू कैन ऐड इन सब्ट्रैक्ट लास्ट वाला टर्म, ठीक है। तो ये टिपिकल है, जैसे आप जो इसमें एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर सकते हो, कैसे r प्लस 4 माइनस इसके प्रीवियस वाला r माइनस 1। सो व्हेन डू दिस यू हैव टू डिवाइड बाय 5, दैट इज यूजुअल टेक्निक। एंड नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई एंड सेपरेट वो टेलीस्कोपिक बन रहा है, ठीक है। तो दिस यू मस्ट हैव डन सिंस एडवांस सीरीज, तो एक्सपेक्ट इतना तो आप यहाँ से खुद से वैसे कर लेना इफ़ यू हैव नॉट डन। तो अब जो फाइनली इसका आंसर आ रहा है, मतलब समेशन करने पे वो आएगा 5 बाई a1 टू द पावर 4 सिग्मा 1 बाई n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 एंड n टेंडिंग 1 टू इन्फिनिटी। अब अगेन फिर इसमें भी अब आप देख सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस, तो आई कैन राइट 1 एज n प्लस 4 माइनस n, और फिर इसको सेपरेट करेंगे। सो आई विल लेफ्ट विथ 1 बाई n इंटू n प्लस 1 n plus 2 into n plus 3 minus 1 by n plus 1 n plus 2 n plus 3, ठीक है। अब 1 when I'll put तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, राइट। सो 4 factorial। सो फाइनली what we got, we are getting answer is 5 by, तो 5 ऑलरेडी था, A1 was already pi by 2, so that will become 2 by pi का पावर 4, okay, into 1 by 4 into 4 factorial. So this is the final answer. So the sum that we will get is 5 by 4 into 4 factorial to 2 by pi whole to the power 4. So I hope you have enjoyed and understood the problem. तो इसमें इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आया है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इवन फ्रॉम प्रीवियस ईयर यू कैन सी। तो उसमें बेसिकली यू हैव टू रिलेट an विथ आइदर an माइनस 1 और an माइनस 2, ओके, मतलब आइदर गैप ऑफ 1 और 2 में आप रिलेट करोगे। सो द पॉइंट इज समहाउ डिनोमिनेटर शुड बी किल्ड, एंड ऑल दैट यू हैव टू डू इज टू जस्ट फाइंड द फर्स्ट टर्म्स लाइक ए नॉट और a1, तो उससे आपका काम चल जाएगा। देखो जैसे एक और क्वेश्चन आप इसमें ले सकते हो, तो सपोज इफ आई टेक वन मोर क्वेश्चन टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, लेट्स से 0 to pi by 2 1 minus sin x to the power n and sin 2x dx. If this I take jn and we need to find sigma jn n equals 0 to infinity. तो क्लियरली दिख रहा है, फिर भी मीन्स यार jn को डायरेक्टली यू कैन इंटीग्रेट, ओके, या फिर अब कुछ यहाँ पे दिमाग लगाओगे। अब ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो ऑफ कोर्स दैट विल नॉट बी द आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम, because that will be clumsy. So what I can write is 2 sin x cos x. Of this motivation came because sin x is already present in the system, its derivative is cos x. तो यहाँ से if I make a substitution of sin x as t, the given integration becomes 0 to 1 minus t का power n and t dt. अब अपने इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा देते हैं, तो ये 2 टाइम्स आ गया, 2 is out. So 2 times of 0 to 1 minus t का power n टी को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस 1 माइनस टी का पावर n को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। सो दैट विल बिकम, और फिर 1 माइनस टी का पावर n टू 1 माइनस टी डी टी, क्लियर। तो यहाँ से जो फाइनली आपका ये एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज बिकमिंग 2 टाइम्स, इफ आई अप्लाई किंग्स रूल 0 to 1 प्लेस टी विथ 1 माइनस टी, यहाँ पे भी उसको रिप्लेस कर दूँ,
तो फाइनली जो मेरे पास बचा वो हो गया 2 टाइम्स 0 to 1 t का पावर n माइनस 0 to 1 t का पावर n प्लस by King's rule, right? This dt. The first expression is nothing but 1 by n plus 1 and second is 1 by n plus 2. And now you can clearly see this telescopes. ठीक है, तो if this telescope, if I will take sigma n equals 0 to infinity, only first term will remain because n0 will give 1 minus 1 by 2. Second term will give 1 by 2 minus 1 by 3. And like this will keep on going. And this will be mass murder. देखो ये सब कर गया. The last term will definitely minus or plus something will be infinity tending to 0. So the final answer will converge to 2 into 1, 2. Okay. So these kind of problems are handled in this way. You must have seen even problems of AP also, where A1, A2, A3 they are in AP, and then they ask some common difference by A1, A2 plus common difference by A3, A4 kind of a structure, ठीक है, और A2, A3 kind of a structure. So there also we are fundamentally using the same idea, क्योंकि इस common difference को अभी लिख देंगे A2 minus A2, इसको I'll write A3 minus A2. तो ऐसा करने पे क्या हो जा रहा था वहाँ पे 1 by A1 minus 1 by A2, 1 by A2 minus 1 by A3, और ऐसे ऐसे करते again you can clearly see mass matter. So first of first and last of last will do. So 1 by A1 minus wherever they stop 1 by n. ठीक है, ऑफ कोर्स n यहाँ पे ऑड हो रहा है. तो अब इस टाइप का बेसिक आइडिया से यूजुअली वी आर हैंडलिंग दिस काइंड. Sometimes they can give you know like problems of integration concerned with inverse function. So let f of x be a monotonically strictly increasing function. So I'm not writing. Okay, in 3 to 5. So in this interval, f of x is monotonically increasing function such that 3 to 5. Okay, f square x dx equals 9. And if it is known f of 1 equals 3, f of 4 equals 5, you have to find the value of integral 1 to 4 x times 5 minus f inverse x dx. ये वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है 2 times of this, मे बी बिकॉज दे वांट टू मेक इट इंटीजर. ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब क्लियरली यहाँ पे यू सी लाइक विल स्टार्ट विद द गिवन एक्सप्रेशन और फिर इसको मैनिपुलेट करेंगे. ठीक है, तो सपोज इफ आई टेक एफ इनवर्स एक्स, इसी को एक कुछ फंक्शंस ले लिए, सपोज वाई ले लिए. सो इफ आई टेक एफ इनवर्स एक्स एज वाई, सिंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स एट लीस्ट इन 3 to 5 इंटरवल, सो ऑफ कोर्स इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, तो आई कैन टेल इनवर्स विल बी यूनिक, सो एक्स विल बी एफ ऑफ वाई. अब एक्स को इफ आई पुट इन दैट एक्सप्रेशन, व्हाट विल गेट, सिंस यू नो व्हेन द इनपुट इज 1 इन द machine, f output is 5. When the input in machine is 4, output is f4 is 5. 1 पे 3 is coming and 4 पे 5 is coming. ठीक है, so f inverse 1 will return 3 and 5. So the limit of integration will change and this will become 3 to 5. I can tell that f inverse x as y. Okay, so that will become 5 minus y times x is f of y, clear, and dx is f dash of y dy, right? Now this is not very difficult to manipulate because now I can use directly integration by parts over here. It can be written as 5 minus y, and integration of f of y f of dash is f of y whole square by 2, evaluation from 3 to 5, this entire expression, and minus, now I will differentiate 5 minus y, that will give minus, so it's plus integration of 3 to 5
और इसको अंदर वाले को इंटीग्रेशन, अंदर वाला इंटीग्रेशन है एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर बाई 2 dy। अब ये वाला क्वांटिटी इज एट 5 इट विल डाई बिकॉज ऑफ 5 माइनस वाई, एट 3 पे विल गेट 2 टाइम्स एफ ऑफ 3 होल स्क्वायर ओवर 2, राइट, माइनस आ जाएगा क्योंकि 0 माइनस समथिंग। एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी 3 to 5 f square x dx is 9, so that's going to be 9/2. So if you calculate 9/2, 2 cancels, minus f of 3. Okay, so what is f of 3? Because here we have defined f of y, right? So that's going to be 1. Now define f inverse x equals y. So x equals f of y, right? X equals f of y. It means for the original function at 1 I was getting output of 3. Okay, so for the inverse function at 3 I'll get 1. So this will be 9/2 minus 1, which is 7/2. I hope this is clear. तो अगर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर इसका 7 आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे whenever you have inverse function क्वेश्चन उसमें दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली यू कैन टेक f inverse x h t and blindly apply integration by parts. Okay, for any problem in JEE आपका आंसर तो पक्का ही जाएगा। Sometimes they'll also ask you, you know, like the point of non-differentiability, number of point of non-differentiability. So because those models are very important in integration. So suppose let's take a function f of x equals greatest of x minus 1/4 plus x times of greatest of x plus mod x minus 4 sine of x plus 2x minus 1 to the power 1/3 plus cos of mod of x, ऐसा कर सकते हो, plus e का power mod of x square plus 1. The question is find the number of points in 0 to 2 pi where the function is non-differentiable. Non-differentiable क्या होगा, या तो corner होगा, otherwise function is discontinuous. So the cause of non-differentiability is basically binary factor. If a function is continuous, then the cause of non-differentiability will be corner point, sharp corner, because from LHS and RHS you will have different slope. If a function is discontinuous, then definitely you can't talk about differentiability there. तब तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तब देखो बिफोर यू इवन फर्दर स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फंडामेंटली इस टाइप के सिचुएशन में करते हैं ना, फर्स्ट सी वेदर सम पोर्शन इन द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल एंड देन दे आर ट्राइंग टू फूल यू, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स दे विल ट्राई टू जनरेट दोज आइडियाज where the part is differentiable but still they are trying to fool you. तो सबसे पहले देखते हैं it cos mod x is same as cos x, why? Because cos plus minus x is same as cos x. तो इसका तो कोई चक्कर नहीं है, it will always be differentiable. Again mod x square is same as x square, so e का power x square is always differentiable because it's a smooth function, देख सकते हो, ठीक है, something like this roughly it will come. It means question is fundamentally we have to analyze these things for differentiability. So last 3 terms, one is of course a differential function. Now what are the points where the function greatest will be non-differentiable? So it will be non-differentiable at the points where this is not continuous or discontinuous. अब ये discontinuous कहाँ पे होता है, इंटीजर पॉइंट पे। अब मेरा विंडो कहाँ है, 0 से 6 पॉइंट समथिंग तक, ठीक है, तो x माइनस 1/4 कहाँ इंटीजर होगा, ठीक है, तो मेरा विंडो है 0 से 2 pi is our window. 2 pi is roughly 6 point something, so that you have to keep in mind. So if I want x minus 1/4 to be integer, so x should be integer plus 1/4. So if I is 0, it will be 1/4. So one of the point I already got 1/4. If I is 1, we have 5/4. Again 9/4 is in window, 13/4 is in window, 17/4 is in window, 21/4 is in window. 6 पॉइंट तक जाना है, 25/4 is in window. अब ये कैसे चेक किया, 25/4 और 2 pi. Let's see if I am confused. So I'll assume it's greater 8 pi. ठीक है, अब 25 and 8 is 3 point something, तो इस 24 point something क्योंकि 1/4 है ना, so it's fine. So because of first guy, the number of point of non-differentiability is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अभी, but I'm not sure. अब देखो, अब ऐसा हो सकता है जो अगर फर्स्ट नॉन डिफरेंशिएबल हो और दूसरा डिफरेंशिएबल हो, तो क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है जो दोनों का समेशन नॉन डिफरेंशिएबल हो? ये बिल्कुल नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज इफ एफ इज हैविंग कॉर्नर एंड जी इज स्मूथ, तो शार्पनेस प्लस स्मूथनेस विल ऑलवेज गिव शार्प. लेकिन इफ एफ इज हैविंग कॉर्नर
एंड यू आर मल्टीप्लाइंग विद ए स्मूथ कर्व, ठीक है। अब वो साथ भी दे सकता है, स्मूथ भी दे सकता है। अब देखो स्मूथ यूजुअली कब देगा, अगर फंक्शन ही लेट से f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, बट एट दैट पॉइंट इफ g डाई, इफ g ऑफ a बिकम 0, तो ये मौत के कारण इसको स्मूथ कर देगा, ठीक है। और ये बेसिक थ्योरम है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आप आराम से बोल सकते हो। सो आई नो लाइक एट 1/4 इट इज़ डिसकंटिन्यूअस, लेकिन अब अगर दूसरा कोई भी चंक 1/4 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है सी ग्रेटेस्ट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 1 एंड माइनस ग्रेटेस्ट इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट 1, लेकिन उसका सब्ट्रैक्शन जो है, मतलब एडिशन इज ऑल्सो सब्ट्रैक्शन, ये तो कंटिन्यूअस हो गया थ्रू आउट। तो इसीलिए आप, ठीक है ना, अगर सेम पॉइंट पे एक साथ डिसकंटिन्यूअस हो जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो फिर आपको एनालाइज करना होगा। लेकिन आप देखते हैं ग्रेटेस्ट एक्स किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ग्रेटेस्ट एक्स को डेंजर है फिर इंटीजर में, तो इंटीजर में इसको डेंजर होगा 1 पे, 2, 3, 4, 5, 6 पे। बट लकली आप देखो नाइदर ऑफ दिस डिसकंटिन्यूटी इज ओवरलैपिंग विद दिस। इसका मतलब अगर 5/4 की हम बात करें, 5/4 पे फर्स्ट को प्रॉब्लम है लेकिन सेकेंड तो कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट एक्स 5/4 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये तो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब थर्ड वाले को देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो थर्ड वाले को कहाँ से प्रॉब्लम होगा, साइन एक्स, थर्ड वाले को प्रॉब्लम होगा जहाँ जहाँ मॉड मरेगा। इट मीन्स वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 टाइम्स एक्स इंटू साइन एक्स, सो मॉड विल हैव प्रॉब्लम वेन एवर इट विल डाई, बिकॉज वेन एवर इट विल डाई ऑल ऑफ सडन द इनर्शिया ऑफ कर्व इज चेंजिंग, तो वहाँ पे कॉर्नर आने का चांस है क्योंकि नीचे से ऊपर रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब ये कहाँ कहाँ मरेगा, ए एक्स इक्वल टू 4 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है, या फिर एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू 0 पे। अब साइन एक्स इक्वल टू 0 विल गिव वैल्यू 0 and 2 एंड पाई। अब 0 and 2 इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि आई वांट टू एनालाइज जस्ट इन द ओपन इंटरवल 0 to 2 अच्छा क्लोज बोल रहा है, सो इट्स फाइन। चलो देन 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। लेट्स एनालाइज इन बोथ 0 to 2 दोनों पे, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, तो ये तीनों पे हो गया। अब 2x माइनस 1 to the power 1/3 को, is it having any problem? Yes, it's having problem in derivability because if I'll differentiate this, क्या आएगा, हाफ 2x माइनस 1, फंक्शन तो कंटिन्यूस है, बता 1/3 माइनस 1, इट मीन्स x इक्वल टू हाफ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसको प्रॉब्लम है x इक्वल टू हाफ। सो टिल नाउ हाउ मेनी प्रॉब्लम पॉइंट्स आर देयर, क्रिटिकल पॉइंट प्रॉब्लम पॉइंट्स वेयर द फंक्शन माइट बी नॉन डिफरेंशिएबल। अभी हम विल बी आई विल नॉट टेल, ठीक है। तो फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 इधर दिखा, 8 9 10 11 12 13 इधर दिखा, ओके, एंड वी हैव 14 15 यहाँ पे दिखा, एंड 16 17 में एक 0 आपको दिख रहा है, ठीक है, एक पाई दिख रहा है। अच्छा 2 पाई एक्स इक्वल टू 4 इज ऑलरेडी काउंटेड, सो दैट विल बी 14, आई होप इट इज क्लियर। एक्स इक्वल टू 4 इज ऑलरेडी काउंटेड, ये ऊपर वाले में काउंट कर चुके हैं, ओके। तो ये आया एक्स इक्वल टू हाफ इज 14 एंड एक्स इक्वल टू पाई वाला जो हो गया 15। स्टिल वी हैव 0 and 2 पाई विच विल मेक 15 + 2 17। तो हम देखते हैं 17 में से कौन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले इज बेटर टू जस्ट द एक्सट्रीम पॉइंट। देखो 0 पे, अब 0 पे इसको तो कोई इश्यू नहीं है, इसको भी इश्यू नहीं है। अब सेकंड वाले को 0 पे इश्यू क्यों नहीं है, क्योंकि देखो x, अगर मैं x ग्रेटेस्ट x का बात करें, so when we're talking about differentiability at 0, so just after 0 we can't talk about x tends to 0 minus because that's not in the domain, okay. So if the function is continuous, it has to be right hand continuity। तो x 0 प्लस पे तो ये एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, तो फंक्शन तो 0 के जस्ट आगे भी 0 जैसे बिहेव करेगा, तो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो 0 पे इट हैज़ नो प्रॉब्लम। अब इसको भी 0 पे प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 पे देखो ये पूरा साइन x ऑल दो 0 हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा कर्व भी मर रहा है, इट मीन्स वन पार्ट ऑफ दिस इज डाइंग, ठीक है। और यू कैन इवन गो विद द फंडामेंटल, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू साइन एक्स कर सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो एंड पुट x इक्वल टू 0, तो स्लोप डिफाइंड है RHS से राइट हैंड साइड से, इसका मतलब 0 पे इट इज सेफ, ठीक है, एंड 2x माइनस 1 नो इशू, इट मीन 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे डेफिनेटली इज नॉट अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है लेकिन यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूस हो गया और स्मूथ फंक्शन है। अब 2 पाई पे भी एग्जैक्टली यू कैन चेक वो सेम आ गया होगा, बिकॉज द ओनली डेंजर फॉर 2 पाई वाज कमिंग फ्रॉम द मदर साइन एक्स, ठीक है।
अब साइन एक्स पे 2 पाई पे है, लेकिन जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर देखोगे जो 2 पाई पे भी ये सुरक्षित है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे स्लोप निकाल सकते हो इन पॉइंट पे। अगेन अब इस केस में लिमिट एक्स टेंस टू 2 पाई माइनस पे स्लोप निकालना होगा एंड इट डज एग्जिस्ट। तो 0 is a point where is differentiable, 2 pi also points of differentiable, so I wanted point where non differentiable, this 17 minus 2, 15 is the answer for this one, ठीक है। I hope you got how to analyze this differentiability and non differentiability। तो ऐसे करके आप इस प्रॉब्लम को ऐसे एनालाइज करते हो, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज इफ यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इफ आई हैव अ फंक्शन f of x equals x minus 1 to the power 100, x minus 2 into 2 into 99, x minus 3 into 98, dot x minus 100 to the power 100, ठीक है। You have to find the value of f dash 101 divided by f of 1। अब दिस इज ऑल्सो एक्सटेंड प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली आप करेंगे क्या, तो अपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन विल लो, राइट। तो ऑफ कोर्स मतलब आप लॉग लो और फिर डिफरेंशिएट कर लो, या तो वो एक पॉसिबल है, ठीक है। अब नाउ यू कैन टेल सर व्हेन यू आर टेकिंग लाइक लॉग लो, तो अब तो पता ही नहीं है। सपोज आप x minus 1 का सपोज इफ आई टेक ln ऑफ दिस टू द पावर 100 एंड देन विल गेट 100 ln x minus 1, बट व्हाट इफ x इज 0.1, तब तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो फिर लॉग लेना ही गड़बड़ हो गया, ठीक है। सो दैट लॉजिक यू कैन गिव। ये तो गलत अप्रोच हो गया। नहीं देखो यहाँ पे सही होगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन नियर अबाउट 101, एफ डैश 101 पे चाहिए, तो नियर अबाउट फंक्शन तो ऑलवेज डिफाइंड होगा ना, 101 के आसपास हम जरूर ले सकते हैं। फंक्शन कैसा भी रहे आगे और पीछे, वी डोंट केयर, लेकिन इन दिस रीजन आई कैन डेफिनेटली इन दिस पार्ट आई कैन टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। एक तो वो है, ठीक है, तो वो करके आप कर सकते हो। दूसरा है, अगर आपको लॉग नहीं लेना है तो फिर इसको आप आराम से लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, देखो x माइनस इन अ कॉम्प्रेस्ड वे इफ आई वांट टू प्रिजर्व माई इंक, ऑल्दो इंक यहाँ पे है नहीं फिर भी, तो एफ ऑफ एक्स को ऐसा लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ हो गया ना, ठीक है। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एन इक्वल टू 1 to 100 एन इंटू, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो अगर आप एफ डैश एक्स लेते हो तो लॉन एफ अगर मान लो सपोज मैं लिया, तो ये कितना आने वाला है, तो ये तो इसको कन्वर्ट कर देगा सिग्मा में, ठीक है। तो क्या आप देखो सिग्मा में क्यों कन्वर्ट करेगा, फर्स्ट टर्म जो है वो 100 लॉन x माइनस 1 है, सेकेंड टर्म इज 2 into 99 लॉन x माइनस 2, और ऐसा सीरीज चलेगा, ठीक है। इफ आई डिफरेंशिएट आई गेट f बाई एफ डैश इक्वल टू 100 बाई x माइनस प्लस 2 into 99 बाई x माइनस 2, ऐसे करते करते तो यहाँ से f डैश बाई एफ बिल्कुल f डैश बाई एफ, तो यहाँ से f डैश का वैल्यू द फंक्शन वैल्यू इंटू 100 बाई x माइनस 1 2 into 99 बाई x माइनस 2, ऐसा चलेगा। अब आप वैल्यू रख दो वहाँ का, जैसे ही वैल्यू रखोगे 101 का वैल्यू, सपोर्ट x इक्वल टू 101, तो ये जो आपका f डैश 101 आ रहा है वो f ऑफ 101 आएगा इंटू 100 बाई 100 प्लस 2 into 99 बाई 99, तो आप देख रहे हो ना, ये जाएगा 1 + 2 + 3, ओके। सो दैट जस्ट सम ऑफ AP। तो ये जो क्वांटिटी हो गया 100 into 101 बाई 2। अब फंक्शन में 101 डाल के भी आप देख सकते हो फैक्टोरियल के फॉर्म में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका फाइनली वैल्यू आने वाला है f डैश 101 बाई, आपको तो यही पूछ रहा है ना, f डैश 101 बाई f ऑफ 101, तो ये तो अपने पास 50-50 आ गया और वही आंसर है। तो ये तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम था जिसमें बाय द लेंथ ऑफ प्रॉब्लम यू शुड नॉट बी वरीड टू मच, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम देखने में मे बी समटाइम्स इट विल बी हेक्टिक और फिर आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना है। जैसे चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक इंटीग्रेशन का ले लेते हैं। कॉसिकेंट ए स्क्वायर एक्स माइनस लेट्स से यू हैव 2024 डिवाइडेड बाय cos x to the power 2024 dx equal to minus f of x by gx to the power 2024 plus constant. You have to find the value of f of pi by 4 plus g of 0 का value. ठीक है, यूजुअली पोजिंग प्रॉब्लम इन दिस फैशन इज नॉट ए क्लेवर आइडिया, क्योंकि मैथमेटिकली उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी चलो मतलब आइडिया जस्ट डिस्कस करना है। सो दिस आई हैव टेकन ऑलरेडी फ्रॉम
कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल एंड मेनी बुक्स इज अवेलेबल, ठीक है। तो अब इसमें तो क्लियरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दोगे, तो यहाँ पे आप 1 बाई कॉस टू द पावर, इसका आप सेपरेट वी कैन डू, राइट। सो 1 बाई कॉस एक्स टू द पावर 2024 एंड वी हैव कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2024 dx बाई कॉस एक्स टू द पावर 2024। अब इसको इफ आई यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो अल्टीमेट एम इज इसको क्लिक कर। अब इसको क्लिक करने के लिए कॉसेकेंट को सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस 2024, कॉसेकेंट का इंटीग्रल इज माइनस कॉट एक्स डी एक्स, अब वो हो जाएगा प्लस 2024 साइन एक्स बाई कॉस एक्स 2025 इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप क्लियरली कंपेयर कर सकते हो, तो एफ ऑफ एक्स कॉट एक्स आ गया, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ गया। फिर प्लग द वैल्यू, आंसर जो ये आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही प्रॉब्लम था, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं, बट द पॉइंट वाज, हाँ मतलब उसको मैं एनालाइज करके ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ वन स्मॉल आइडिया व्हिच आई वांट टू जस्ट टेल यू is sometimes recently last year also if you see they have tried to combine theory of equations with Rolle's theorem. इसमें maximum number of roots एक a naught x cube plus a1 x square plus a2x plus a3 टाइप का एक्सप्रेशन दिया था और पूछ रहा था इसका मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो अब देखो क्यूबिक इक्वेशन को आप कैसे एनालाइज करोगे। इन जनरल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इफ दिस इज आवर क्यूबिक एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स, आई एम कंसिडरिंग ए ग्रेटर देन 0। अब सेम आर्गूमेंट कैन बी गिवन फॉर ए लेस देन 0। तो अब क्यूबिक कैसा हो सकता है, या तो क्यूबिक का ऑल 3 डिस्टिंक्ट रूट होगा। व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑल 3 डिस्टिंक्ट रूट ऑफ क्यूबिक। तो ऑल 3 डिस्टिंक्ट के लिए द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मस्ट गिव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा बीटा। देखो जैसे यहाँ पे अल्फा एंड बीटा, लेकिन दैट्स नॉट सफिशिएंट। वाई नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो ये 3 रूट अभी भी तो आ गया अल्फा और बीटा, देखो अभी भी अल्फा आ गया और बीटा आ गया, लेकिन नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ क्यूबिक इज जस्ट 1, मीन्स दीज आर अदर रूट, लेट्स से ABC समथिंग, नॉट ABC अल्फा बीटा का रूट, लेट्स से दिस इज सम डेल्टा एंड 5 आर द रूट्स, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा एंड 5। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, नॉट ओनली एफ डैश शुड हैव 2 रूट बट ऑल्सो द साइन एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ डेल्टा पे, देखो एफ ऑफ डेल्टा पे वाट एवर वैल्यू आई एम गेटिंग एंड एफ ऑफ 5 पे वट एवर वैल्यू आई एम गेटिंग दैट मस्ट बी लेस देन 0, अपोजिट साइन का होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली 3 जगह कट करेगा कभी। अब यहाँ पे अगर सेम साइन का हो गया, देखो एफ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव हो गया और एफ ऑफ 5 भी पॉजिटिव हो गया, तो फिर वो देयर इज एग्जैक्टली 1 रियल रूट। अब तुम बोलोगे अब वाई नॉट यू आर राइटिंग सेपरेटली दिस गट एन 0 एंड एफ ऑफ 5 गट एन 0, वाई अब क्लब दिस, हम क्लब इसलिए करें क्योंकि निगेटिव क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पे डेल्टा इज हियर एंड 5 हियर, ऑल्दो आई एम एनालाइजिंग ओनली फॉर पॉजिटिव केस, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 रूट ऐसे आ सकता है। अब ऐसा भी पॉसिबल है क्यूबिक का जो एक टच करे और फिर मीन्स 2 रिपीटेड रूट एंड देन द अदर रूट इज, सो वी हैव अल्फा एंड बीटा काइंड। सो अगेन इस डेरिवेटिव हैज 2 रूट्स, सो देखो इन दिस सिचुएशन एफ ऑफ एक्स इज इन दिस फॉर्मेट, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस बीटा, ऐसा फील करो। तो एफ डैश एक्स अगर तुम निकालोगे तो ये कितना जाएगा, देखो एक्स माइनस अल्फा इंटू समथिंग सम लीनियर बच जाएगा। अब एक्स माइनस अल्फा कॉमन क्यों जाएगा, वो यहाँ से फील कर सकते हो, यहाँ से भी फील कर सकते हो, क्योंकि इफ आई डिफरेंशिएट हियर इज अ डबल रूट, तो इसीलिए स्लोप एफ डैश विल ऑल्सो डाई एट अल्फा एंड इट विल डाई एट सम पॉइंट बिटवीन अल्फा बीटा विच इज गामा, ठीक है। सो इफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स हैज ए कॉमन रूट अल्फा, तो पक्का एक रिपीटेड रूट है, इट मीन्स एक पॉइंट पे टच कर ही रहा है, ठीक है। और अगर ये अपवार्ड केस में अगर देख लो एफ ऑफ गामा जो आया आपका वो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे 2 रूट्स मीन्स 2 रिपीटेड रूट और एक कटिंग रूट, सो ऑल 3 विल बी रियल, ठीक है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है 2 रिपीटेड रूट हो और एक इमेजिनरी, क्योंकि अगर रिपीटेड रूट होगा तो ग्राफ को नीचे जाना होगा, एंड इफ द क्यूबिक ग्राफ इज गोइंग डाउन इट हैज टू मूव अप, दैट्स व्हाई वी कांट हैव अल्फा अल्फा एंड नो रियल रूट, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू नो इमेजिनरी रूट्स विद रियल कोएफिशिएंट कम्स इन कंजुगेट। तो इस टाइप के एनालिसिस आप कर लेते हो ऐसे बेसिक से।
नाउ सम ऑफ यू माइट आस्क लाइक ऐसा आप इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो गया, सो दैट्स लॉजिक इज वेरी सिंपल, क्योंकि व्हेन x इज इन्फिनिटी दिस विल बी द डोमिनेटिंग टर्म, ये बहुत बड़ा आएगा, और दिस यू कैन नेग्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब। और ऐसे कर सकते हो एक्स क्यूब कॉमन ले लो, और तो फर्स्ट टर्म से 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस समथिंग, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑलमोस्ट ये लिमिट 0 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट फंक्शन का बिहेवियर एक्स क्यूब जैसा आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई द बिहेवियर ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्सट्रीम पॉइंट इज डिक्टेटेड बाय इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग मीन्स हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट, बट दिस लीडिंग कोएफिशिएंट विल बिकम अ लैगिंग कोएफिशिएंट व्हेन x इज वेरी स्मॉल, क्योंकि सबका टाइम आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक AOD का प्रॉब्लम्स है। सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट सेशन ऑफ जेई बूस्टर, रैंक बूस्टर। मैं इस टाइप का प्रॉब्लम 3-4 बूस्टर अभी लाऊंगा, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेशन क्वेश्चंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस और एरिया बाउंडेड फिगर को कवर करेंगे कैलकुलस से। सो दैट विल बी आवर एजेंडा फॉर द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।